شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی. مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے. اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی. آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرو. یہ ابھی بھی لاڈلا ہے. نواز شریف صاحب اس سسٹم کا لاڈلا نہیں ہے, وہ عوام کا لاڈلا ضرور ہے. یہ اس کو نکالتے ہیں, عوام اس کو لے کے آتی ہے. السلام علیکم. پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں مہک اسلم. شو کے مستقل میزبان پارس جہانزیب چھٹی پر ہیں, اس لیے شو کی میزبانی میرے ذمہ ہے. ناظرین, آج اینٹی کرپشن پنجاب نے پی ٹی آئی کی رہنما اور سابق وزیر شیریں مزاری صاحبہ کو اسلام آباد سے گرفتار کیا. ان پر راجن پور میں زمینوں کے غیر قانونی قبضے کا الزام لگایا گیا. اس گرفتاری کے بعد تحریک انصاف نے شدید احتجاج کیا اور ان کی بیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے شیریں مزاری کو رہا کرنے کا حکم دیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں آج رات 11:30 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ گرفتاری سیاسی انتقام ہے یا قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ آج اسی پر ہم پروگرام میں بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون سے علی گوہر بلوچ اور پی ٹی آئی سے شوکت بسرا صاحب, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو گفتگو کا آغاز کریں گے علی گوہر بلوچ صاحب سے. علی صاحب بتائے گا, آج تحریک انصاف کی انتہائی ایکٹیو رہنما اور سابق وفاقی وزیر ہیں شیریں مزاری صاحبہ, جنہیں گرفتار کیا گیا ہے. حمزہ شہباز کا حکم تھا جی کہ انہیں رہا کر دیا جائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ رہا کیوں کیا گیا, انہیں گرفتار کیوں کیا گیا, کس کے کہنے پر گرفتار انہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ گرفتاریاں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں, تو میں کیا سمجھوں, عوام کیا سمجھے, یہ ایک سیاسی انتقام ہے؟ کیونکہ مریم نواز کے وہ الفاظ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا. تو یہ سدا وقت ایک سا نہ رہنے کی عملی مثال آج ہم دیکھی ہے ہم نے, یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ یہ جو شیریں مزاری صاحبہ کے خلاف کیسز ہے یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ بزدار صاحب کی پنجاب حکومت نے ان کے خلاف انکوائری ہیڈ کی اور اس میں یہ گلٹی ہیں. کافی مطلب ہے کہ یہ سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے جس پر کہ ان کے ناجائز قبضے ہیں, اور یہ بزدار صاحب کی حکومت نے ان کے خلاف انکوائریز کی تھی اور یہ محکمہ اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف کارروائی کی. جب معاملہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے ہمدردی کے طور کے اوپر کہ ایک خاتون ہے ان کو رہا کر دیا. لیکن اس کے برعکس جو 4 سال سے ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. وہ جو انتقامی کارروائیاں جب ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال مریم نواز صاحبہ 2 دفعہ جیلوں میں بند رہی. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی گئی. شہباز شریف صاحب جو ہے پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے ایک جھوٹا مقدمہ ہے, یہ ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا معاملہ ہے. یہ جو وقت ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. آپ کو نہیں لگتا یہ جو ٹائم فریم ہے, اس ٹائم فریم میں ایک ایسی گرفتاری کو عمل میں لانا اور پھر اس گرفتاری پہ باتیں اٹھنا, یقیناً تمام نظریں پھر نون لیگ کی طرف ہے اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, اگر یہ سیاسی انتقام ہوتا تو پھر ان کو رہا نہ کیا جاتا اور ان کو چھوڑا نہ جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ اس میں مجرم ہیں, ملزم ہیں, اور یہ مطلب ہے کہ ان کے خلاف انکوائری ثابت ہو چکی ہیں. ان کو قانون فیس کرنا پڑے گا, ان کو عدالتیں فیس کرنا پڑے گی, اور اس بات کا فیصلہ عدالتیں کریں گی کہ یہ جو ہے بری الزمہ ہیں یا اس میں گلٹی ہیں. لیکن جو محکمہ اینٹی کرپشن نے بزدار صاحب کے ٹائم میں انکوائری کی, علی صاحب آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ گلٹی ہیں, اگر ایک شخص گلٹی ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر رہا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر رہا کس کے کہنے پہ کیا گیا, ذرا یہ بھی واضح کر دیں, کیونکہ حمزہ شہباز کے کہنے پر رہائی ہونا, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے؟ دیکھیں, حمزہ شہباز صاحب اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے صوبہ کے, اور وہ اس وقت الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون کی گرفتاری جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے. اگر کورٹ ان کو بیل دیتی ہے تو وہ اپنی ضمانت کروائیں اور اپنے مقدمات کو فیس کریں.
لیکن اصل انتقامی کارروائیاں وہ تھیں جو مریم نواز صاحبہ کو جب وہ جیل میں اپنے والد کو ملنے کے لیے گئی تو ادھر ان کو ان کی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا. چلیں علی صاحب، یہ جو نون لیگ کہتی ہے نا کہ عورت ہے اور عورت کا احترام، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر جب گرفتاری ہوئی تو کیا گرفتاری کے وقت نہیں پتا تھا کہ ایک عورت کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ محکمہ ہے جس نے بزدار صاحب جس نے کاروائی بزدار صاحب کے وقت میں کی، انکوائری بزدار صاحب کے وقت میں کی، اور یہ ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن تھا، اس میں کوئی حکومت انوالو نہیں تھی، اور حکومت ایسے ہوچے ہتھکڑوں پر ہماری حکومت یقین بھی نہیں رکھتی. وہ عمران خان تھا جس کو اس قسم کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے، اور یہ عورت کی حرمت کو کیا سمجھیں گے جس نے 2 دن ایک دن علی صاحب ذرا میری رہنمائی فرمائیے گا، میری آسانی کے لیے مجھے سمجھائیے گا، اینٹی کرپشن کا محکمہ کیا حکومت کے انڈر نہیں آتا؟ نہیں، حکومت کے انڈر آتا ہے، لیکن یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن کے خلاف انکوائری کرتی ہے، اس کا اپنا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ کوئی براہ راست اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر، اور اس کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے جس کی کہ انکوائری، ہاں اس اینٹی کرپشن کی انکوائری میں نے خود فیس کی ہوئی ہے، اور میں آج بھی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے مقدمات میں عدالتوں کے ذریعے ہائی کورٹ سے ہم لوگوں نے ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے. لیکن آپ کو گرفتار تو نہیں کیا گیا نا اس انکوائری میں، لیکن جو آج ہم نے گرفتاری دیکھی اس پہ تو پی ٹی آئی کا موقف بڑا واضح ہے. اور پھر ایک بڑی عجیب سی بات کہ مریم نواز بھی اپنی اس گفتگو میں اس گرفتاری کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، جسٹیفائی کر رہی ہیں. نہیں، مریم نواز صاحبہ نے بالکل یہ کہا ہے کہ اگر شیریں مزاری جو ہے وہ اس میں بے گناہ ثابت ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. یہ الفاظ ہوتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے کہ جس بات کے اوپر آج تک جب نون لیگ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئی تو کسی لیڈر نے اس قسم کا بیان دیا. یہ مریم نواز صاحبہ نہیں ہے، نے کہا ہے کہ اگر شیریں مزاری صاحبہ بے گناہ ثابت ہوتی ہے تو میں ہوں گا. اور دوسری میں اپنی بات بڑھاتے ہوئے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ایک دن پہلے عمران احمد نیازی نے جس قسم کی بےہودہ اور غلیظ گفتگو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کی، اس وقت بصرہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، کوئی سیاسی لیڈر کسی کی ماں بہن کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتا ہے، بظاہر زبان جس طرح کی عمران احمد بالکل علی صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. عورت کا احترام بڑا ضروری ہے، وہ چاہے آپ کسی جلسے میں کھڑے ہو کے عورت پہ بات کر رہے ہوں، ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، ہر کسی کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب کی ماں بہنیں ایک جیسی ہوتی ہیں. بصرہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. حکومت کا موقف ہے کہ شیریں مزاری کی گرفتاری میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پلیز بتائے گا آپ کی نظر میں، پی ٹی آئی کی نظر میں، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ یہ سیاسی انتقام لے رہی ہے حکومت یا واقعی جو ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں، جو مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں، جو علی گوہر صاحب بات کر رہے ہیں، وہی بات ہے؟ مہک، سب سے پہلے تو بڑے شدید الفاظ میں میں یہ جو فاشسٹ حکمران ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو جو انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہوئے جو گرفتار کیا، اور جس طرح آپ دیکھیں ان کی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے، خواتین تو نظر آ رہی ہیں، ان کی بیٹی کا موقف یہ ہے کہ باقاعدہ تشدد کیا گیا. میرے خیال میں یہ اس وقت یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ چونکہ گورنمنٹ تو ان کی ہے نہیں ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور وہ آئے ہیں یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتاری کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو رہا کرو. مریم بی بی کہہ رہی ہیں کچھ تو ہوا ہوگا جس وجہ سے گرفتار کیا ہے، اور فیکٹ کیا ہے. یہ آپ کو بھی اب تو پورے میڈیا پہ وائرل ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اس وقت 6 سال کی تھی، 70s کا معاملہ ہے جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے فیملی کا. اچھا، اس کے بعد ان کو آج یاد آنا تھا جب بصرہ صاحب، علی گوہر تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں یہ مقدمہ ان پہ درج ہوا تھا، تو یہ کیا بزدار صاحب کو نہیں پتا تھا، اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ 6 سال کی تھی؟ مہک میری بات کو سمجھیے. یہ جو مقدمہ ہے اس وقت ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ 6 سال کی تھیں. اس وقت کہاں بزدار صاحب تھے؟ ابھی جو بات آپ کہہ رہی ہیں مجھے بتائیے، کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ کسی ادارے نے گرفتار کیا ہے،
اینٹی کرپشن جو ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ بسرا صاحب آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال یہ ہے کہ 11 اپریل کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. 11 اپریل کو بزدار صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, تو کیا اس وقت جب یہ مقدمہ درج ہوا تو کیا پتا نہیں تھا کہ یہ وہ 6 سال کی تھی؟ مہک, میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں ایشو کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ریفرنس جب آیا ہے اس وقت کی بات آپ کر رہی ہیں. اب فار دی سیک آف آرگومنٹس اگر کوئی ایشو ہوا تھا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اینٹی کرپشن نوٹس کرتی ہے. میں بھی ایک چھوٹا سا وکیل ہوں, ان کو بلاتے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ ایشوز ہیں, آئیے کیا معاملہ ہے. ابھی جو ہائی کورٹ لگ گئی اور 11:30 بجے وہ کیس کو سن رہے ہیں. اصل میں بات کیا ہے؟ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے. انہوں نے ابھی آئی جی کو چینج کیا ہے, ابھی یہ گرفتاریوں کی لسٹیں بنا رہے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, اب یہ جو جیلیں, ہتھ کڑیاں, یہ کس کو ڈراتے ہیں بھائی آپ؟ یہ تو سیاسی کارکنوں کا زیور ہوتی ہیں, کارکنوں کے لیے جو فخر کا باعث ہوتی ہیں. آپ کسی کارکن کو پکڑیں, لیکن یہ جو ہوٹھے ہٹکنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں, اس سے آپ کی حکومت آگے نہیں بڑھ سکے گی. آپ تو صرف 3 یا 4 دن کے مہمان ہیں, اور جس ایجنڈے پہ آپ کو لایا گیا آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. 1.25 مہینے کے اندر آپ اندازہ کیجئے, یہ تو آئے تھے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ کم کریں گے. یہ بھی ہم موضوع جو ہے نا شامل گفتگو کریں گے, پیٹرول کا ریٹ کم ہونا, مارکیٹ سٹیبل ہو جانا. لیکن جو اس وقت گرفتاریوں والا معاملہ ہے, میں چاہوں گی ہم اس پہ ذرا ڈسکشن کر لیں. گرفتاریوں کے حوالے سے پلیز مجھے بتائیں کہ گرفتاریاں کیوں کی جائیں؟ ظاہری سی بات ہے, جب موجودہ حکومت دیکھے گی کیسز بن رہے ہیں, موجودہ حکومت دیکھے گی کرپشن کی گئی ہے, موجودہ حکومت دیکھے گی کہ صحیح طریقے سے کام نہیں کیا گیا, تو پھر گرفتاریاں تو عمل میں لائی جائیں گی. اچھا مہک, کیا انٹریسٹنگ سچویشن ہے. وقت کا پرائم منسٹر, وقت کا چیف منسٹر, آج ایف آئی اے میں ان کے اوپر چارج فریم ہونا تھا. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیا مذاق بنا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنا ہے, وہاں پر چارج فریم ہونا تھا آج. اور ایف آئی اے جو انڈر ہے پرائم منسٹر صاحب کے, وہاں جا کے ان کے افسران کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل چارج فریم نہ کریں. مجھے بتائیے کہ آپ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کن لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے؟ 26 لوگ وہ ہیں جو یا ضمانتوں پہ ہیں اور کچھ سزا یافتہ ہیں. گزارش یہ ہے, ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے, لیکن ٹائمنگز آپ دیکھیں, جب خان صاحب کال دینے والے, آج یہ گرفتاری. لیکن میں بس صاحب اسی معاملے پر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس بھی لیا ہوا ہے. آپ کے علم میں یقیناً نہیں ہوگا, جیسے آپ نے خود بھی کہا نا کہ میں چھوٹا موٹا وکیل ہوں. لیے ہے نا نوٹس, لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج ایف آئی اے کو جو افسران پیش ہوئے ہیں, آج چارج فریم ہونا تھا, جس کو فرد جرم کہتے ہیں. آپ اپنے رپورٹر سے پوچھئے کہ وہاں وہی افسران ان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ فرد جرم عائد کیجئے, تو آج وہاں پہ تو میرے ایسے حکومتیں نہیں چلتی. لیکن میں پھر آپ کو کہوں, یہ اپنا شوق پورا کر لیں. اچھا, آپ شوق یہ اپنا شوق پورا کریں, پھر نہ کہنا بلوچ صاحب آپ یہ 2-4 دن کی وزارت عظمیٰ, 2-4 دن کی وزارت اعلیٰ, یہ اب آپ ڈرا نہیں سکیں گے. قوم اٹھ گئی ہے. اور آپ کو میں یقین مانے, اگر آپ یہ اچھت کنڈے, ابھی میرا ہارون آباد, فوٹ آباد, بہاول نگر میں کریا گلی گلی لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے لیے. اور ڈاکٹر شیریں مزارہ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ دلیر خاتون, دیکھیں پہلی بات تو ابھی ان کی میں سن رہا تھا, سیاست میں جب کوئی آتا ہے یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خاتون ہے. ابھی میں سن رہا تھا. بلوچ صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیا شہید بی بی نصرت بھٹو صاحبہ بھی کسی کی ماں اور بہن تھی؟ کیا یہاں پر جس سے آپ نے کتاب لکھائی ریحام خان, اس وقت تو آپ بڑے نعرے مار رہے تھے. ابھی چپ سب کو چھوڑ دیں, عمران خان صاحب کی جو مسز ہیں, جو فرسٹ لیڈی تھیں, وہ تو کوئی سیاسی خاتون نہیں تھیں. کیا کیا زبان ان کے متعلق استعمال کی گئی. اس وقت تو آپ سب لوگ, اور آج کی وزیر داخلہ, تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا ہی رکھیں کہ دل سنبھل جائے. ہمیں اتنا مجبور نہ کریں, ہم پر امن ہیں,
हम पुरअमन एहतजाज करना, जलसा करना, ये हमारा हक है। बिल्कुल बसरा साहब, आपका हक है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम पुरानी रिवायतों को ना दोहराएं तो हमारा एक अलग सा स्टैंडर्ड है, हमारी एक अलग क्लास है, हमें उस क्लास को मेंटेन फिर रखना चाहिए ना, हमें दूसरी पार्टीज की रवायात पे नहीं चलना चाहिए। आजिज धामरा साहब, आपकी जानिब आती हूँ। बसरा साहब भी करें, बसरा साहब आपको मैं वापस आऊंगी, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आजिज धामरा साहब जी, एक फिक्रा कह के मैं ये एक फिक्रा कह के इस वक्त जो हुक्मरान है ना, जो इंपोर्टेड हुक्मरान है, जो जाली हुक्मरान, उनको कहना चाहता हूं, ऐ शीश महल में रहने वालों, हम पर पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर वापस पलटेंगे तो शीश महल का क्या होगा, इसलिए ना छेड़ मलंगानू। इस वक्त तो कौम जाग गई है, और मैं यकीन माने जज्बा इस वक्त ये है कि अगर ये बाज ना आए तो लोग जो हैं उसको तो खान साहब रोक के बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अब देखते हैं ना कि खान साहब कल जो ऐलान करते हैं तो ये अवाम का जो समंदर है शायद इख्तिदार की तरफ रुख करता है या नहीं। आजिज धामरा साहब, आपकी जानिब आती हूँ। बसरा साहब ये कह रहे हैं कि अवाम उठ गई है, सड़कों पर मौजूद है, शिरीन मज़ारी की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से शदीद एहतजाज भी किया गया है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अवाम सड़कों पे है या नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक एजेंडा होता है, उस पर उनके फॉलोअर और कारकुनान जो हैं वो उस पर चलते रहते हैं। मगर जहाँ तक डॉक्टर शिरीन मज़ारी का जो अभी गिरफ्तारी हुई है और उसके केस का मामला जो है, वो तो मेरे ख्याल में इमरान खान से पूछना चाहिए कि उनके वसीम अकरम प्लस जो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे और उनकी ये तारीफ़ें करते रहते थे कि जी वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और करप्शन भी नहीं करते, किसी के मतलब ज़्यादा बात भी नहीं करते, फेवर नहीं करते किसी को, और कानूनी काम करते हैं। ये मौक़िफ़ था पीटीआई का पौने 4 साल तक। उसके दौर में एक मुकदमा कायम होता है और एक इदारा है जिसकी एक इन्वेस्टिगेशन का अपना एक मामला होता है, और ये गिरफ्तारी बिल्कुल हुई है बतौर खातून। अगर आज शिरीन मज़ारी साहिबा के लिए पीटीआई हमदर्दी रखती है तो पीटीआई से कुछ सवाल बनते हैं। पीटीआई को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि किस तरह रात की तारीकी में, ईद की रात, चांद की जो कुर्बानी की ईद थी लास्ट ईयर, एक हॉस्पिटल में एक वो भी खातून थी किसकी बेटी थी, उसको आपने उठा के और किस अंदाज में धक्कम पील में किस तरह धक्के देके आपने जेल में डाल दिया था। क्या हुआ उस केस का? क्या उसमें कोई उम्र कैद की सजा हुई? अदालतें आपके पास थी, प्रोसिक्यूशन आपके पास था, इदारे आपके अंडर थे, ये सारी सिचुएशन ये थी। और दूसरी बात, वो भी एक खातून थी जिसने मज़ार कायद पे आके अगर नारेबाजी की तो आपने कहा कि तौहीन मज़ार कायद हुई थी कायद आज़म की मज़ार पे, और आपने 4:30 से 5 बजे एक सूबे के आईजी को किडनैप करके यरगुमाल बना के प्राइवेसी को तोड़ के एक दरवाजा तोड़ा था। उस खातून के खावंद के साथ आपने उसकी मजम्मत नहीं की थी, हालांकि हम कह रहे थे कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, हम मुल्तान में 2 दिन पहले होने वाली उस जबान की जिसकी मजम्मत बसरा साहब को करनी चाहिए बतौर खातून, अगर वो शिरीन मज़ारी साहबा की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं तो दिल बड़ा करें और सियासी कारकुन होने का सबूत दें। देखें, केस में गिरफ्तारी गलत हुई है या सही हुई है वो तो अदालत देख रही है, और मेरे ख्याल में वो उंगलियां जो अदालत के ऊपर उठ रही थी और उस पर लानत मलामत कर रही थी अपने पब्लिक जलसों में, आज उन्हीं की एक रुकन की गिरफ्तारी के लिए 11:30 बजे अदालत खुल रही है। 11:15 बजे अदालत खुलने पे जो सवाल जो पार्टी उठा रही थी, आज वो वाह कर रही है और वो कह रही है कि हमें इंसाफ मिल रहा है अदालत से। आज वो अदालती फैसले पे भंगड़े और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। वो जुबान तारीफ कर रही है जो जुबान जजों और अदालतों को गालियां दे रहे थे 1 महीने पहले के लिए। तो वो काम ना करें जो बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और अभी आपने जो शौकत बसरा साहब से एक सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया कि रिवायतें अच्छी रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जब मेरे चेयरमैन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब जब यूएसए का ट्रिप करने जा रहे थे, उस पे इनके चेयरमैन ने कहा था कि वो भीख मांगने जा रहे हैं और वो अमेरिका को कहेंगे कि इमरान खान को रोको, वो हमें गिराना चाहता है।
मगर पूरी दुनिया आज बिलावल भुट्टो साहब के उस मौक़िफ़ की तारीफ कर रही है जिन्होंने सरजमीन यूएसए पे कहा कि जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने रूस का जो दौरा किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। आज वही सोशल मीडिया जिस पे आप भगड़े डालते हैं वो आपको क्या कह रही है? एक तरफ वो झलक दिखाई जा रही है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाखों इख्तलाफ है इमरान खान से, आज भी हैं और हो सकते हैं। इनको बिलावल भुट्टो साहब से इख्तलाफ हो सकते हैं, इनको अपने सियासी मुखालिफ पार्टियों से और लीडरशिप से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मेरे लीडर का कद बढ़ गया कि उन्होंने दूसरे मुल्क की सरजमीन पे अपनी लीडरशिप के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम आजाद हैं, यही तो चाहते हैं कि ये अच्छी रवायात कायम हो ताकि जब हम बैठ के बात करें, जब हम अपने सियासतदानों को अपने टॉक शोज मिले तो हम अच्छी रवायात की बात करें। हम ये बात ना करें कि फलाने टाइम पे ये हुआ था तो अब आपकी गवर्नमेंट ही आ गई तो आपकी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। लेकिन धारणा साहब मैं जितना टाइम उनको दिया है मुझे आखिरी बात करने दे। जी महक मुझे आखिरी बात करने दे, आखिरी बात करने दे। मैं आपके चैनल की तवज्जो से पूरी कौम के सामने पीटीआई के इन दोस्त के तवज्जो से कहना चाहता हूं कि जब आप शिरीन मजारी साहिबा की इस गिरफ्तारी की बतौर औरत मजम्मत करते हैं, उसको इंसाफ देने के लिए अदालत 11:30 बजे खुल रही है। मैं पीटीआई से सवाल कर रहा हूं, तो क्या ये गलत है? जब आइन के तकद्दुस के लिए 11:15 बजे अदालत खुल रही थी तो आपको इख्तिलाफ था, और फरियाल तालपुर साहिबा भी एक औरत थी जिसकी गिरफ्तारी हुई, उस केस में क्या हुआ? वो तो आजाद हो गई थी। तो मैं अगेन ये कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर शिरीन मजारी साहिबा बेकसूर हैं तो गिरफ्तारी करने वाले इदारों को अदालत के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। ठीक है धामरा साहब, ये जो आपने सवाल पूछा ना, मैं चाहूंगी कि बसरा साहब जरा इसका जवाब भी दे दे। बसरा साहब जी प्लीज कमेंट कीजिएगा। उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए और कायदे आजम की मज़ार की तौहीन की तोहमत लगाने वाले मस्जिद नबवी की तौहीन की भी मजम्मत करें। तो ये कह रहा हूं। दामड़ा साहब देखें, पहली जो आपने आखिरी बात की है मस्जिद नबवी में, मैं समझता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे हमारी जान माल औलाद कुर्बान। जिन लोगों ने वहां पे प्लानिंग की है, मनसूबा बंदी की है, नारेबाजी करवाई है, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा करे। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी दुनिया में और आखिरत में रुस्वा करे। पहली बात। और शेख रशीद के वो भतीजे हैं एमएनए। दामड़ा साहब दूसरी बात सुने। शेख रशीद के भतीजे हैं, मैं बोला नहीं। दामड़ा साहब इंटरप्ट ना करें। दामड़ा साहब अच्छी बात की है। अब दूसरी बात आपने अच्छी बात की है। मैं सपोर्ट कर रहा हूं आपको, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं बसरा साहब। दामड़ा साहब मुझे बात कर सपोर्ट कर रहा हूं। चलें धामरा साहब बसरा साहब का जवाब ले लेते हैं ना, उनकी बात कंप्लीट होने दें। जी बसरा साहब। दूसरी बात महक, दूसरी बात, अभी इन्होंने मिसालें दी कि जी फलां को गिरफ्तार कर लिया, फलां को गिरफ्तार कर लिया। जेआईटी बनी, जेआईटी बनने के बाद और महीने उन्होंने कार्रवाइयां की, इन लोगों ने अबूरी जमानतें करवाई, जमानतें कैंसिल हुई, उसके बाद गिरफ्तार हुए। डॉक्टर शिरीन मजारी साहबा का जो बात हम कह रहे हैं कि भाई अगर अबूरी जमानत करवा लेती, अदालत जमानत कैंसिल कर दे, अब गिरफ्तार कर लेते। दूसरी बात देखें, गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं कि अदालत 11:30 बजे खुल गई। भाईजान जो केस का आप रेफरेंस दे रहे हैं, क्या जुर्म सरजद हुआ था उस वक्त कि रात 12 बजे अदालत खुली थी? आज तो एक खातून को जो कुछ 6 साल की उस वक्त थी कि जब ये मामला चला, जो आज आइन की रखवाली 50 साल पहले, आइन की रखवाली अदालत की जिम्मेदारी थी। आइन की रखवाली अदालत की जिम्मेदारी थी। धामरा साहब मैं आपके स्पीकर ने क्यों इस्तीफा दिया? वो कहते हैं कि मैं वोटिंग नहीं करवा रहा हूँ। दामड़ा साहब आपके स्पीकर कहते हैं कि मैं वोटिंग नहीं करवा रहा हूँ। क्यों वोटिंग करवाई? बसरा साहब अपनी बात कंप्लीट करें, आपको वक्त मिलेगा बोलने का, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। बस आप ज्यादा टाइम लेंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। आप ज्यादा टाइम लेंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। आप ज्यादा बात करेंगे, टाइम लेंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। हमें इदारों की बात ना सिखाएं दामड़ा साहब। हमें पता है यहाँ पर अदालतों पे हमले हुए, यहाँ पे जजों को ना करें एहतराम। मैं कब कह रहा हूँ आप गालियां दें, आप गालियां दें इदारों को? मैं कब कह रहा हूं? मैं कब कह रहा हूं एहतराम करें? ना करें, आपकी पॉलिसी है। धामरा साहब ऐसे तो बसरा साहब की तो बात समझ में नहीं आएगी ना, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, उनकी बात समझ में आएगी ना, मुझे समझ में आएगी कि मैं चाहूंगी बसरा साहब को बात कंप्लीट करने दें। धामरा साहब यही तो मैं बात कर रहा हूं ना।
दामड़ा साहब ये कोई तरीका, आप सेनेटर रहे हैं, आप अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमें सिखा रहे हैं इदारों की ओ भाई, इदारे ये हमारे अपने इदारे हैं, ज्यादा बात ना करें ना, दूसरों को भी आई थिंक मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए क्योंकि ना दामड़ा साहब खामोश हो गए ना वसीम साहब का जवाब। उस तक पे एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तब तक आई थिंक हमारे जो मेहमान हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो चुके होंगे और अपनी अपनी बारी पे प्लीज बात करें। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अली गौहर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। कल खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि 25 से 29 तक के दरमियान कोई भी एक तारीख मैं दे सकता हूँ। मुझे बताएं मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि ना आप लोग इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, ना सख्त मुआशी फैसले हो रहे हैं आप लोगों से। कहाँ खड़ी है नून लीग, जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? ऐलान कर देना इलेक्शन की तारीख का। देखिए महक, बात बड़ी सिंपल है। एक तो खान साहब, आपको पता है कि पहले ये कहते रहे कि मैं मुल्तान के जलसे में ऐलान करूंगा, तो ये इन्होंने हमेशा कौम से झूठ बोले हैं। पिछले 4 साल भी ये कौम से झूठ बोलते रहे, और उससे पहले भी आपको पता है कि जब ये ऑपोजिशन में थे तो कंटेनर पर खड़े होकर झूठ बोलते रहे। ये पहले कहते थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, फिर इक्तदार में आए तो कहते रहे कि मदीना की रियासत बनाऊंगा, फिर उसके बाद अब ये चले हैं कि जनाब अब ये साजिश का एक बयानिया लेकर आ गए। तो मकसद ये है कि खान साहब ने तो अपनी हर बात पे झूठ बोला, और पहले प्रोग्राम का आपने देखा कि डेकोरम बसरा साहब ने काफी खराब किया है, और अपनी बारी पर भी बोले, और अपनी जब बारी नहीं थी, जब दूसरा को बात करता है तो उसके दरमियान भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। मैं तो खामोशी के साथ इनकी बात सुनता रहा हूँ। गुजारिश करने का मकसद ये है कि बसरा साहब कह रहे थे कि पीटीआई बड़ी पॉपुलर होगी। भाई, जब आरटीएस सिस्टम के जरिए और धांधली करके पीटीआई को जितवाया गया था, बसरा साहब आप मेरे भाई हैं, इंतहाई मादरत के साथ, आप तो मेरा भाई उस फ्लड में भी कामयाब नहीं हुए थे। तो मकसद ये है कि अब तो इमरान अहमद नियाजी के सर के ऊपर 25% इन्फ्लेशन रेट जो इन्होंने बढ़ाया उसका बोझ भी है, जो इन्होंने बीआरटी पेशावर में डाका डाला उसका बोझ भी है, जो इन्होंने चीनी और आटे से घपले करके कमाया उसका टोकरा भी इन्होंने अपने अली साहब, लेकिन मेरा उठाया सवाल ये है कि खान साहब कल लॉन्ग मार्च की तारीख का अगर ऐलान कर देते हैं तो नून लीग कहाँ खड़ी है, फिर क्या फैसले होंगे? लॉन्ग मार्च कोई चाहे वो लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च करें, अच्छा, बात ये है कि हर पार्टी का जमहूरी हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर ये कानून को हाथ में लेंगे, अगर ये पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की बात करेंगे, अगर ये फिर से सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ कब्रें खोदने की बात करेंगे, अगर ये असेंबली के जंगले तोड़ने की बात करेंगे, अगर ये पीटीपी पर हमले करने की बात करेंगे, अगर ये इलेक्शन कमीशन को इनके जिस तरह से वज़रा ने लाइन में खड़े होकर गालियां दी उस तरह का रवैया करेंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। क्या समझें फिर? गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, हम ये समझें? नहीं, बिल्कुल। अगर ये पुरअमन रहकर एहतजाज करे तो जहां मर्जी करे। हमने 4 साल एहतजाज किए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे हुए, अपने पॉलिटिकल उस वक्त की ऑपोजिशन पार्टी ने भी जलसे किए, लेकिन कहीं कोई गमला तक नहीं टूटा। लेकिन अगर ये कानून को तोड़ेंगे, अगर ये पुरतशद्दद जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहेंगे, अगर ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहेंगे, तो फिर हम इनको आनी हाथों के साथ इनका मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको रोकना जानते हैं। लेकिन ठीक है अली साहब, इसका कमेंट आ गया। इस एक और सवाल के अब हुकूमत सोच क्या रही है? जी 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 मेरी एक गुजारिश सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने प्रोटेस्ट किया और जलसे किए, और जब हमने खान साहब को कहा कि आप इस्तीफा दें और इलेक्शन में आ जाए, तो उस वक्त खान साहब ने ये बात क्यों ना मानी? अच्छा। जब हमारा हाथ इनके गरेबान तक पहुंच गया और अदम एतमाद इनके करीब, ये तो कहते थे कि अदम एतमाद लाते क्यों नहीं हो, लेकर आओ, कामयाब करके दिखाओ।
जब अदम एतमाद आई तो फिर वो झूठा है खाती उन्होंने लहराना शुरू कर तो अली दिया। साहब अब आप लोग मान लेना पीटीआई की बात, करवा लें इलेक्शन, क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? क्या नून लीग क्या सोच रही है? मुद्दत पूरी करने का सोच रही है या पहले इलेक्शन में जाने का सोच रही है? देखिए बात यह है कि जो हमारे कायद हैं वो बिल्कुल डे वन से उनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शनों की तरफ जाएंगे। अच्छा। लेकिन इसका फैसला सिर्फ हमने नहीं करना, तमाम इत्तेहादी जमातों ने करना है। और उम्मीद है कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हाँ, अगर ये कोई जमहूरी तरीके के साथ हुकूमत को हटा सकते हैं तो इनके सामने भी ऑप्शन पड़ी है, ये अदम एतमाद लेकर आ जाए। कोई जमहूरी तरीका, जो कानूनी तरीका है, जो आईनी तरीका है, ये रात के 12 बजे अदालतें खुलने की बात करते थे। इनको पता नहीं है बसरा साहब को कि अदालतें इसलिए खुली थी कि आपने कानून तोड़ा था, आपने आइन तोड़ा था, जिस वजह से कि रात के 12 बजे अदालतें खुली थी। और उस वक्त तो आप कहते थे कि क्यों खुली है। आज 11:30 बजे की अदालत आपको बड़ी अच्छी लग रही है और आप समझते हैं कि ये बड़ी ठीक है, तो ये अपने हर बयान की खुद ही नफी करते हैं। सही है, ठीक है। अली साहब आपका कमेंट आ गया। धामरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। अली साहब भी ये कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी पार्टियां फैसला करेंगी यकीनन वही हमारा फैसला होगा, तो पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? आज हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम साहब की मुलाकात भी हुई है लाहौर में, तो पीपल्स पार्टी क्या मौकिफ रख रही है अपना इलेक्शंस के हवाले से और स्पेशली जो इस वक्त हमारी मईशत है उसके हवाले से? देखिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं, मगर बसरा साहब जो हैं उन्होंने बात की थी, जब मैंने अदी फरियाल को कोट किया यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जी एक जीआईटी बनी थी और उसने केस दाखिल किया था और उसके बाद वो गिरफ्तारी हुई। मेरे भाई साहब आप हिस्ट्री से जरा थोड़ी स्टडी कर लें, गिरफ्तारी ऑलरेडी की हुई थी, वो हॉस्पिटल में थी इस्लामाबाद में, और रात को 12 बजे जब जेल का टाइम बिल्कुल क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है 4 बजे के बाद, किसी कैदी को आप दाखिल नहीं कर सकते जेल के अंदर। हॉस्पिटल में गिरफ्तार खातून को ईद की रात 12 बजे धक्के देके आपने जेल में डलवाया था और स्पेशल जेल का दरवाजा खुलवाया था। मैं वो बात कर रहा था आपसे, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये केस कब दाखिल हुआ था और क्यों दाखिल हुआ था, और अगर एंटी करप्शन ने गलत गिरफ्तारी की है तो अदालत उससे पूछे। मेरे ख्याल में कि इन्होंने ये कहा था कि वो जो अदालत 11:45 बजे क्यों खुली थी, भाई वो आइन के ऊपर शब्बे खून जो आप मारने जा रहे थे उस लिए खुली थी। और अगर आपको आप इतने दिलेर थे, आपके स्पीकर ने क्यों कुर्सी छोड़ी और फिर वो वोटिंग करवाई, ना करवाते। और मेरे ख्याल में अदालत ने बहुत अच्छा काम किया है। आज की अदालत ने, वो आइन को बचाने के लिए अदालत खुली थी, ये एक फर्द की हवाले से अदालत खुल रही है, मगर बहुत अच्छा काम किया है हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कि 11:30 बजे अदालत को खोल के पीटीआई से तारीफ करवा ली है अदालत की। ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और दूसरी बात मुझे एक कंफ्यूजिंग है, बसरा साहब मेरी ये कंफ्यूजिंग दूर कीजिएगा। पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर के रूस के दौरे के हवाले से, उसको आप किस नजर से देखते हैं? और जो आपके अराकीन ने इस्तीफा दिए हुए हैं, क्या वो तनख्वाह भी उठा रहे हैं या वो तनख्वाह से भी दस्तबरदार हो चुके हैं? चलें धामरा साहब अब मेरे सवाल के जवाब पर आ जाए। मैं दूं जवाब महक? चले बसरा साहब आप पहले। हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा पहली बात आरटीएस सिस्टम से बचने के लिए एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अगर इसी सिस्टम पे इलेक्शन हुए तो फिर ये उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, पीटीआई इल्जाम लगाएगी, क्योंकि ये इल्जाम लगाने में तो बड़े शेर बनते हैं। 11:15 बजे वाली अदालत पे तनकीद करते हैं, 11:30 बजे वाली अदालत की तारीफ करते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे ये अभी मशवरा जारी है। अच्छा, ये डिस्कशन जारी है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस बारे में कोई राय दूं। ये टॉप लीडरशिप के दरमियान ये मशवरे अभी भी जारी हैं इस बात पे। ठीक है जी बसरा साहब, अब आप बताएं। महक पहली बात तो ये दोनों एक ही हैं, दोनों को टाइम आप एक को टाइम दे दें, वो दोनों को देती हैं। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, ये दोनों मुझे इंटरप्ट ना करें। जी जी जी, बोले आप अपनी बात कंप्लीट करें। फरमा रहे थे
बलोच साहब फरमा रहे थे चीनी के। अली साहब मैं चाहूंगी आपको वक्त मिला, अब जरा बसरा साहब से तसल्ली से बात सुनें। आप इंटरप्ट ना करें ना, आप बोले यार मैं बोला हूँ, सब्र तो करें यार, हौसला तो करें। अली साहब प्लीज, अली गौर साहब प्लीज, आपकी मैंने बात सुनी, तसल्ली से सुनी, बसरा साहब को अपनी बात कंप्लीट करने दें। आपकी तरफ भी मैं दोबारा आऊंगी अली गौर साहब। बसरा साहब प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। प्रॉब्लम हो जाता है अगर बात करें तो। जी बसरा साहब प्लीज। अच्छा महक, बात यह है, मैंने अर्ज ये किया है कि इनके पास आज इनको अभी तो आप करेंगे मुद्दत पूरी करेंगे, ये तो इद्दत पूरी नहीं कर सकते, मुद्दत तो बहुत दूर की बात है। अभी खान साहब को कॉल देने दें, हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे तो ये बोरी बिस्तरा बांध के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। और दूसरी बात, आप भाई आप तक 1.25 महीना हो गया है, तोशा खाना कार्ड, मजहब कार्ड, औरत कार्ड, फरागोगी कार्ड, उसके अलावा है क्या? आप हुकूमत हैं, हुकूमतें बातें नहीं करती। और किया क्या है कि एक डॉक्टर शीरी मिजारी साहबा को, एक खातून को, सबसे सुन तो ले, ये कार्ड ना खेले यार, सबर आप इंटरप्ट तो ना करें यार। अली गौहर साहब, धामरा साहब, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज बसरा साहब को बात कंप्लीट करने दें। सबर तो कर लें यार। जी बसरा साहब प्लीज। अच्छा मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, अभी महक आप नोट रखिएगा, महक देखिए टाइम सबको बराबर का मिला ना, आप जरा बसरा साहब की बात सुन लेते हैं। महक मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के फजल से कल लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। ये अगले हफ्ते ये प्रोग्राम रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड पे रखिएगा, ये अगले हफ्ते नहीं होंगे, ये अगले हफ्ते बोरिया बिस्तर बांध के। अच्छा बसरा साहब, ये अब लॉन्ग मार्च की बात करें प्लीज, जरा ये बात कर दीजिएगा, ये जो लॉन्ग मार्च है ये पेशावर से शुरू होता हुआ हम देखेंगे या लाहौर से? बसरा साहब प्लीज। अल्लाह के फजल करम के साथ आप इनको कहीं सब्र तो करें, बात तो करने दे। जी बसरा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त महक, अली गौहर साहब मैं चाहूंगी कि अगर आप बसरा साहब को बोलने की इजाजत दे दें तो वो यकीनन मेरे भी सवाल का जवाब दे देंगे। ये जो लॉन्ग मार्च है बसरा साहब, ये हम क्या देखें, पेशावर से शुरू होगा या फिर लाहौर से? ये पाकिस्तान के हर कोने से शुरू होगा। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है, भानुमती का कुनबा जो इकट्ठा हुआ है, ये घरों से नहीं निकल सकेंगे। आप कह रही है ये हुक्मरानी करेंगे, इनको कहें हमारे किसी का। आज डॉक्टर शीरी मजारी साहबा को इन्होंने एक ट्रेलर देख लिया था सियालकोट में, एक ट्रेलर आज देख लिया है। ये इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है बेचारों के अंदर, तो इस वक्त इनको पता है। ये तो मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त आप बात कर रही है कहां से शुरू होगा। हाँ। यकीन मानिएगा साउथ पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है बहावलनगर। अच्छा। वहां से मेरा अपना जिला है वो। अच्छा। तमाम जिले के अंदर से इसी तरह आप बलूचिस्तान है, यानी आप ही कह रहे हैं कि लाहौर से कश्मीर तक देखेंगे हम कि हर शहर से हर कोने से पीटीआई के सपोर्टर्स निकलेंगे। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि 20 मई की डेडलाइन दी थी खान साहब ने कि 20 मई तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ये 20 मई तक वाला प्रेशर गवर्नमेंट बर्दाश्त कर गई है। आज जरदारी साहब की वजीर आजम से मुलाकात होती है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी फैसले होंगे इत्तेहादी मिलकर फैसले करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट अभी भी इस सिचुएशन में है कि आप जितना मर्जी उन्हें प्रेशराइज कर लें, वो लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च हो? ये मैं नहीं कह रही, अली गौहर साहब ने अभी ये कहा है, तो वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेगी, आपको लगता है? देखिए गुजारिश सुने, मैं फिर आपको कह रहा हूं, क्या पिद्दी का शोरबा, पल्ले नहीं तेला दे कर दी फिर दी मेला मेला। आप देखें तो सही, आप अभी ये 2 दिन की बात है कि ज्यादा दूर नहीं है, कल खान साहब ऐलान कर रहे हैं ना। अच्छा। उसके बाद मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो 11 जमातें, खासतौर पर पीपल्स पार्टी को मेरी जमात रही है, इनको मैं शाबाश देता हूं जरदारी साहब को कि जिस तरह इन्होंने गिन गिन के बदले ले रहे हैं। बलोच साहब आपकी जमात को इन्होंने वहां पहुंचा दिया है जहां शायद अब आपको भी समझ आने लग गया, जो बुखलाहट है, जो परेशानी है, आपको पता है कि आपके अब हालात क्या है। जरदारी साहब को मैं समझता हूं कि वो बड़े सियाने सियासतदान हैं, उन्होंने अभी और भी बदले चुकाने हैं। एक बदला तो इनको हुकूमत दे के चुका दिया, खुद अपनी वजारतें वो ले ली जिनका कोई अमल दखल नहीं है। आज पूरे साउथ पंजाब, लाहौर, कहां चली गई बिजली भाई? बिजली गायब हो गई। क्या इमरान खान साथ ले गया? डॉलर, वो जो बातें करते थे हम 100 सवा 100 पे 150 पे ले आएंगे,
बिजली महंगी, बस ऐसा मौजूदा आटा हुकूमत कहती महंगा, है ये तो आप चीनी लोग इतना महंगी। बेड़ा गर्क करके चले गए ना हमारी मईशत का कि वो हम उसको स्टेबल करने के लिए भी अच्छा। एक डायरेक्शन सोच रहे हैं। अली साहब आप प्लीज बताइएगा ये जो भी डायरेक्शन जिसके बारे में सोचा जा रहा है और ये जो भी बसरा साहब कह भी रहे हैं कि जरदारी साहब तो गिन चुन के बदले ले रहे हैं, तो क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए बात ये है कि इत्तेहादियों की हुकूमत है अच्छा। और हम सब मिलकर चल रहे हैं। बसरा साहब वो शख्स है कि ये किसी जमाने में जरदारी साहब के आगे भी भंगड़े डाला करते थे और ये नारे लगाया करते थे। पीपल्स पार्टी आपके साथ मतलब बहुत है बुरा कि कर रही है जरदारी साहब। साहब पे भारी। यकीन माने मुझे हमदर्दी है आप लोगों से। आजकल ये इमरान अहमद नियाजी के आगे भंगड़े डाल रहे हैं, तो बसरा साहब की बाकी सियासी जिंदगी अल्लाह वैसे मुझे आपसे हमदर्दी है। वो मुख्तलिफ जमातों के आगे भंगड़े डालते हुए गुजरती है। इनको खुद नहीं पता कि अगली बार अली साहब आप किसी भी तैयारी जमात से आपका करेंगे, ताल्लुक हो, आपने मुझे लगता है कि धमकियां देनी सबसे शुरू कर दी हैं पहले दोबारा आपने। अवाम की भलाई हर जमात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। को आप लोगों ने देना क्या है क्योंकि आप अवाम से वोट लेते हैं। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद थे। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।